we're going to start off with redox reactions. ठीक है? Before we move on, redox reaction involves a few details that you need to keep in mind. Any reaction where there is oxidation and reduction going on simultaneously, ठीक है, it is termed as redox reaction. ठीक है? There are a few tools that you need to remember. By the way, this is not in the note, so this is why I'm writing it all down for you. In terms of oxygen, let's say, if there's a gain in oxygen, this is called oxidation. If there's a loss in oxygen, this is called a reduction. Simple, right? For hydrogen, it changes a bit, right? A loss in hydrogen content is basically oxidation, whereas a gain in hydrogen is reduction, right? Moving forward, if we were to talk about in terms of electrons, right? Loss in electrons, loss in the number of electrons is basically oxidation. Gain is reduction, right? Number 4, if we were to talk about in terms of oxidation numbers, an increase in oxidation number, tells us about an increase in oxidation number tells us about oxidation, whereas a decrease in oxidation number tells us about reduction. Examples, देखो यार, let's say मेरे पास है सोडियम, ठीक है? any element in its natural state will have an oxidation number of 0. Atom है, कोई charge तो नहीं होता, right? So it has an oxidation number of 0. Let's say it converts into an ion, right? Don't you think oxidation number 0 से +1 हुआ, and because of that this is an increase in oxidation number and hence it is oxidation. Sir, एक बात पूछनी थी, ये Yes. All of these rules will coincide with one another. None of these would contradict. Next example is right. Cu, copper being a metal, exists in its natural state, और यहाँ पे मेरी oxidation number 0 हो गई. Compound copper sulfate में copper exists as Cu2+, तो वो again 0 से 2+ पे जा रहा है. जा रहा है sir. This is the reason why this is an example of oxidation. Fe2+ है, ठीक है? Fe2+ अगर मेरे पास है और वो Fe3+ में कन्वर्ट हो रहा है, अगेन ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, दिस इज ऑक्सीडेशन. सिमिलरली अगर Fe3+ से Fe2+ पे जाता, द रिवर्स प्रोसेस दैट वुड हैव बीन रिडक्शन, राइट? सो मूविंग फॉरवर्ड, अगली चीज जो आ जाती है रिडॉक्स रिएक्शन में वो ये है यार कि आपको ऑक्सीडेशन नंबर्स वर्कआउट करना आना चाहिए, राइट? यू आर टॉट दैट इन ओ लेवल्स. एक बात याद रखना यार कि any group 1 element will have an oxidation number of 1, group 2 will have +2, group 3 will have +3, group 4 will have +4, and so on. Group 5 has -3, tendency to gain an electron because it is a non-metallic column, a non-metallic group.
Group 6 -2, Group 7 -1, and Group 8 is 0. So you don't consider that. Let's say for example SO3 मुझे दे दिया गया था, राइट, और मुझसे बोल दिया गया यार कि सल्फर की एग्जांपल मुझे बता दो, राइट। सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट मुझे बता दो। सॉरी, सल्फर को मैंने X कंसीडर कर दिया, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को। आई एम टॉकिंग अबाउट पावर्स हियर बाय द वे। ऑक्सीजन इज इन ग्रुप 6, हैज अ चार्ज वैल्यू ऑफ -2, क्योंकि वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करना प्रेफर करेगा। ग्रुप 6 वाले प्रेफर करते हैं कि वो गेन करें और 2 इलेक्ट्रॉन गेन करें टू अचीव नोबल गैस स्ट्रक्चर, राइट। यहाँ पे मेरे पास 3 ऑक्सीजन है, तो मैं उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। द एंटायर थिंग इज अ कंपाउंड, मीनिंग टू से उसकी ऑक्सीडेशन, ओवरऑल कंपाउंड की ऑक्सीडेशन स्टेट कोई चार्ज दिख रहा है? 0 है, कोई चार्ज नहीं है। सो यू इक्वेट दैट टू 0, एंड here you will realize कि x plus -6 is equals to 0, x is equals to +6, उधर जाएगा तो +6 हो जाएगा, राइट, अकॉर्डिंग टू मैथ। तो ये मेरी सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई फॉर दिस कंपाउंड। फॉरवर्ड मेरे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, व्हाटएवर आई जस्ट सेड इट्स रिटन हियर। ग्रुप 1 है तो यार वो +1 हो जाएगा, ग्रुप 2 है +2, ग्रुप 3 +3, ग्रुप 4 +4, राइट। All of these tend to lose electrons and hence have a positive state, right? 5, 6, 7 tend to gain electrons, which is the reason why they are negative. They are negatives, right? ठीक है। अच्छा, लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरे पास सल्फर ट्राइऑक्साइड था, मैंने अभी आपको ये वर्क ऑफ करके दिखा दी एग्जांपल, राइट। सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर तुम्हें निकालना है, तुमने उसको X कंसिडर कर दिया। अगेन ऑक्सीजन इज इन ग्रुप 6, -2 लेगा, यहाँ पर दो एटम्स या मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन है, तो आपने उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया, एंड द एंटायर थिंग इज इक्वेटेड टू 0, एंड यू नीड टू रियलाइज व्हेन यू आर डूइंग दैट, सही है। तो x -4 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू +4। क्लियर है? Yes, sir, clear. Excuse me. सिमिलरली H2S होता है, H2S अगर है, मुझे बोल दिया यार सल्फर की यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट मुझे बता दो। सल्फर को मैंने अगेन यहाँ पे X कंसिडर कर दिया। हाइड्रोजन इज इन ग्रुप 1, +1 हो गया, 2 हाइड्रोजन है, प्लस द एंटायर थिंग इज अ कंपाउंड इक्वल टू 0 कर दिया, यहाँ से X की वैल्यू तुम्हारे पास आ जाएगी -2। एक बात तुम्हें अंडरस्टैंड करनी है कि यार सल्फर में उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट नेचुरली 0 है, क्योंकि नेचुरल स्टेट उसका S हो गया, राइट। H2S में वो -2 पे था, सल्फर डाइऑक्साइड में वो +4 पे था, सल्फर डाइऑक्साइड पे +6 पे था, और H2SO4 पे भी +6 पे था, राइट। आपसे पूछ लिया जाता है यार कि ग्रेटेस्ट चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट मुझे बता दो। चेंज इज बेसिकली चेंजेस अब 2 different values being subtracted, basically change हो जाता है फाइनल माइनस इनिशियल, राइट। लेकिन यहाँ पे ग्रेटेस्ट चेंज की वैल्यू बात की गई है, तो सबसे बड़ी वैल्यू तुम्हारे पास +6 हो गई, सबसे छोटी वैल्यू -2 हो गई, एंड उसके हिसाब से ये हो जाएगा 6 -2 +2, ये हो जाएगा +8, राइट। लेट्स से द नाइट्रोजन इन अमोनिया, सही है, ठीक है। नाइट्रोजन को मैं X कंसिडर कर रहा हूँ, हाइड्रोजन +1 × 3 हो गया, द एंटायर थिंग इज अ कंपाउंड, इक्वेट कर दिया 0 से, यहाँ से आप वैल्यू लोगे यार तो आपके पास ये आ गई। क्लियर है? ठीक है। सर Moving डायरेक्ट forward, सॉल्व हो रहा है, इसके अलावा इसके पीछे कोई थ्योरी ऐसा कुछ नहीं है, बस ये यार
नाइट्रोजन के केस में, सॉरी अमोनियम के केस में देख लो, ओवरऑल कंपाउंड जो है तुम्हारा, it's basically an iron, sorry, it's basically an iron, right? Yes, it's an With a iron. plus Plus one one. charge. You equate it to plus one. पहले वाले जो सारे थे वो सारे के सारे कंपाउंड थे, there was no charge, तो इसलिए तुम इक्वेट कर रहे थे जीरो से, राइट? Recharge ये वो ये आखिरी आयन, में एग्जैक्टली ये आयन है एंड हैज अ पॉजिटिव वन चार्ज, तो इसी वजह से आपने डायरेक्ट वैल्यूज प्लग। अगेन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है यार, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में तुम्हारे पास इंटायर थिंग इज अ कंपाउंड, सो यू आर इक्वेटिंग इट टू जीरो, ठीक है? और यहां से मेरे पास वैल्यू आ गई x इज इक्वल टू +4, ठीक है? तो और नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड पे +2 हो गया, यहाँ पे +5 हो गया। देख लो मेरे पास मैंगनेट आयन है, सही है, और ओवरऑल चार्ज नेगेटिव है यार। मैंगनेट का मुझे ऑक्सीडेशन नंबर चाहिए, उसको मैंने x कंसिडर कर दिया। ऑक्सीजन इज 2, -2 होता है बेसिकली, -2 मल्टीप्लाइड बाय 4 कर दिया, एंड द एंटायर थिंग इज इक्वेटेड टू अ -1 जो कि नेट चार्ज था। यहाँ से मैंगनेट के मेरे पास आया 7। ये इसीलिए कहते थे, याद है ओ लेवल्स में, आई डोंट नो तुम्हें याद हो, एसिडिफाइड पोटेशियम मैंगनेट 7 कहलाया जाता था, सही है? K2Cr2O7 हो गया, ये पोटेशियम डाइक्रोमेट कहलाता है, सही है? एक बात याद रखो, दिस इज कॉल्ड अ कॉम्प्लेक्स आयन। नाउ इधर तुमसे बोला सिल्वर की ऑक्सीडेशन स्टेट बता दो, सिल्वर की ऑक्सीडेशन स्टेट ये रही, सही है? कैसे? ये पार्ट यू नीड टू लर्न फॉर अ व्हाइल नाउ। अमोनिया न्यूट्रल है तो एंटायर थिंग इज इक्वेटेड टू जीरो। कॉम्प्लेक्स में ये थोड़ा सा इशू होता है। कॉम्प्लेक्स इज नॉट एन एएस कोर्स बाय द वे, हाउएवर यू कैन बी आस्क्ड to calculate the oxidation number, right? So being a neutral, this is called a ligand by the way, being a neutral ligand, इसकी वैल्यू 0 हो जाती है। सिल्वर मुझे चाहिए था, उसको मैंने +1 से इक्वेट किया, द एंटायर थिंग केम आउट टू बी +1, ठीक है? ये बात मैंने मेंशन कर दी, सिंस NH3 इज न्यूट्रल इट कैन बी टेकन एज 0 entirely, राइट? CN Okay, जो है sir. वो -1 चार्ज होता है उसका। अच्छा अगर क्योंकि ये एएस में है नहीं, सही है, लिगैंड्स वगैरह एएस में नहीं है, तो दे विल एक्चुअली टेल यू कि यार CN का जो लिगैंड है यू कैन टेक इट एज -1, ठीक है? यहाँ पर 2 लिगैंड्स मौजूद हैं, तो -1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज -2, राइट? अगेन मुझे सिल्वर का चाहिए था, तो x -2 और एंटायर थिंग इज इक्वेटेड टू अ -1 जो कि ओवरऑल चार्ज था, और यहाँ से मैंने वर्क ऑफ कर लिया कि x की वैल्यू मेरे पास +1 है। क्लियर होती है बात? Next बिल्कुल एक straightforward calculation है। बिफोर आई मूव ऑन, याद रखना यार, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो सामने वाले स्पीशी या कोरेस्पॉन्डिंग स्पीशी को ऑक्सीडाइज कर दे और खुद रिड्यूस हो जाए, सही है? खुद रिड्यूस होगा, सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा, दैट इज कॉल्ड एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। There are a few oxidizing agents in the course. One of them is KMNO4 जिसका कलर पर्पल होता है। After reaction, it turns colorless. ठीक है? Similarly, पोटेशियम डाइक्रोमेट है, ऑरेंज कलर का हो जाता है। क्रोमेट है, वो येलो हो जाता है, ठीक है? H2O2 is हाइड्रोजन पेरोक्साइड, सही? तुम्हें सारे नहीं याद करने, एटलीस्ट तुम्हें ये दोनों याद होने चाहिए, ये दोनों याद होने चाहिए, ठीक है? ये तुम्हारा काम की चीज है, बिकॉज ये ग्रुप 7 जब हम पढ़ रहे होंगे तो उसमें भी आ रहा होगा। कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और H2SO4 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आ रहा होता है। रिड्यूसिंग एजेंट यार कॉरेस्पॉन्डिंग स्पीशी, सामने वाले को रिड्यूस करेगा, खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट KI हो जाता है यार। एक बात और याद रखना, ऑल मेटल्स आर रिड्यूसिंग एजेंट्स बिकॉज